आरती वर्ष 7 द्वारा रचित, कंपोज बाय गुरु गोविंद सिंह। यत्ते प्रसन्न भये हैं महामुनि, देवन के तप में सुख पावे। The great sage Lord finds pleasure and delight in the penance and hard work of the demigods of the heavenly worlds, which they perform to control their vices and perform their duties for the welfare of all living beings on earth. महामुनि प्रभु देवलोक के देवों के तप और कठोर परिश्रम को देखकर प्रसन्न होते हैं और उसमें सुख पाते हैं। जो परिश्रम देवजन अपने विकारों को नियंत्रित करने में और पृथ्वी के सभी प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करने के लिए करते हैं। जग करें एक वेद ररे, भवताप हरे, मिल ध्यान ही लावे। To please the God in the heavenly worlds, many demigods are performing yajnas worship. Someone is chanting the Vedas, someone is engaged in removing the pain of the existing living beings, and many are meditating together on God. ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए देवलोक में कई देव यज्ञ द्वारा पूजन कर रहे हैं। कोई एक वेद का जाप कर रहा है, कोई भवसागर के ताप हरने में लगा है और कई मिलकर ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं। झालर ताल मृदंग उपंग, रबाब लिए सुर साज मिलावे। In the heavenly worlds, to praise God, the demigods are creating melody and music with cymbals, trumpets, drums, lute, and other accompanying instruments. देवलोक में ईश्वर की स्तुति करने के लिए देवजन झांझ, ताल, मृदंग, अन्य साथ में बजने वाले उपंग, वाद और रबाब लेकर सुर और साज मिला रहे हैं। नर गंधर्व गान करें, जन छज अप्सरा नित्य दिखावे। In the heavenly worlds, to praise God, and in his honor, somewhere the horse-headed celestial beings and divine singers are singing, and somewhere the warrior-like figures, nature spirits, and nymphs are dancing. देवलोक में ईश्वर की स्तुति करने के लिए तथा उनके सम्मान में कई किन्नर, अश्वमुखधारी देवजन और गंधर्व दिव्य गायक गा रहे हैं, तो कई योद्धाजन, प्राकृतिक आत्माएं तथा अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। संकन की धुन, घंटन की कर, फूलन की परखा बरखावे। In the heavenly worlds, to praise the God, and in his honor, the sound of the conch, the sound of the bells is playing, and the rain of flowers is falling. देवलोक में ईश्वर की स्तुति करने के लिए तथा उनके सम्मान में शंख की ध्वनि, घंटी की करी हुई ध्वनि और फूलों की बारिश बरस रही है। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेक पुरंदर के बलि जावे। Millions of beautiful looking demigods are standing in the heavenly worlds to do the arti of God, and seeing their king Indra doing arti of God with full faith and enthusiasm, other demigods too are also willing to sacrifice themselves for the God with full love and gaiety. करोड़ों सुंदर लगने वाले देवजन देवलोक में खड़े होकर ईश्वर की आरती कर रहे हैं और वह अपने राजा इंद्र को पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर की आरती करते हुए देखकर वह देवजन भी पूरे प्रेम और उल्लास के साथ ईश्वर पर बलिहारी जा रहे हैं।
दान व दक्षिण देके प्रदक्षिण भाल में कुमकुम अंछत लावे. After doing arti of the image of the god, all the demigods are giving donations for the needy. They are doing parikrama, circumambulation of the god's idol, and are applying tilak of kumkum and rice grains on their forehead. सारे देवजन ईश्वर के प्रतिमा की आरती करके जरूरतमंदों के लिए दान व दक्षिणा देके प्रभु के मूर्ति की परिक्रमा लेकर अपने माथे में कुमकुम और चावल के दाने का टीका लगा रहे हैं. कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे. There is an uproar of joy in the entire Devpuri, and all the demigods, along with their families, are singing auspicious songs together because Lord Mother Chandrika has saved Indra from the demons like Shumb and Nishumb and got his kingdom back. The demon of vices is removed from the mind by devotion to the Lord. सारे देवपुरी में खुशियों का कलोहल मचा हुआ है और सारे देवजन अपने कुल परिवार के साथ मिलकर मंगल के गीत गा रहे हैं क्योंकि भगवान माँ चंडिका ने शुंभ निशुंभ नामक दानवों से रक्षा करके इंद्र का राज्य वापस दिलाया है. प्रभु की भक्ति से मन से विकारों का दानव दूर हो जाता है. Gist of verse 7. Even in heaven, being completely immersed in the name of the Lord is the real arti. And to please Lord, it is necessary to control one's vices and work for the welfare of all. To please God, the demigods perform yajna worship, chant Vedas, meditate on God, and are engaged in working for removing the pain of existing living beings. There many musical instruments are being played in the Aarti of the Lord. Gandharvas are singing songs for God's glory. Conches and bells are being played. Flowers are being showered. Angels are dancing immersed in the devotion of God. Millions of demigods are immersed in the devotion of God and are willing to sacrifice themselves for service of God. To please God, they are donating for the needy, doing parikrama, circumambulation of the idol of God, and putting the tilak of God's love on their foreheads. In this divine atmosphere, everyone is singing auspicious songs together because Goddess Mother Durga came in the form of Chandika and killed the demons like Shumb Nishumb and got Indra his throne back. Only through devotion to God can the demons of vices be removed from one's mind. मतलब एरर तो कम है और सूर्य का भी अभी पूरा एरर इस बार 2 वीकली 2 मिला है उसको. हाँ तो उसको एक बार बोलना पड़ेगा. अदरवाइज हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे 1-2 दिन जो चेक किए थे ये लोगों को मिला था एरर. मैंने बोला कि एटलीस्ट उसको मैं एक बार पूछा था 1-to-1 में कि क्या ये करके तुमका उन्होंने मेरा ठीक है. वो बोला कि मेरे को तो सर 3.5 से 4 घंटा लगता है एटीडीएस का. कौन? श्लोक संख्या 7 का भाव. देवलोक में भी प्रभु के नाम में पूर्ण तरह मग्न होना ही असली आरती है और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने विकारों को नियंत्रित करना और सभी के कल्याण हेतु कार्य करना आवश्यक है. देवजन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रभु के नाम में पूर्ण तरह मग्न होकर यज्ञ पूजन, वेद जाप, ईश्वर में ध्यान और भव सागर के जीवों के ताप हरण हेतु कर्म कर रहे हैं
वहां प्रभु की आरती में अनेक वाद बज रहे हैं। गंधर्व ईश्वर की महिमा के गीत गा रहे हैं। शंख और घंटियां बज रही हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। अप्सराएं ईश्वर की भक्ति में मग्न होकर नृत्य कर रही हैं। करोड़ों देवजन पूर्ण आस्था के साथ मग्न होकर ईश्वर की आरती कर रहे हैं और ईश्वर पर बलिहारी जा रहे हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंदों के लिए दान दे रहे हैं। ईश्वर के प्रतिमा की परिक्रमा कर रहे हैं और अपने माथे पे ईश्वर के प्रेम का टीका कर रहे हैं। इस दिव्य वातावरण में सभी मिलकर मंगल गीत गा रहे हैं, क्योंकि देवी माता दुर्गा ने चंडिका रूप में आकर शुंभ निशुंभ नामक दानवों को मार कर इंद्र को उसका सिंहासन पुनः दिलाया है। प्रभु की भक्ति से ही मन से विकारों का दानव दूर होता है।